دنیا بھر کی محبت نہ کرے، میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے۔ سواگت ہے دوستو ایس بی کا سنہرے لفظ میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی نظم۔ اس سے پہلے آج ایک اچھی بات سنتے ہیں، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ چلیے پہلے سنیں گے عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ بیتے ہوئے کل سے نفرت ہے، آتے ہوئے پل سے نفرت ہے، ان کو کبیر کے دوہوں سے غالب کی غزل سے نفرت ہے۔ ذرا سا دل لگا کے سنیے گا، میں نے بڑی ہمت لگا کے اسے کہا ہے۔ میں پڑھتا ہوں صاحب، مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے، جاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے۔ عمران ہمت کرتا ہے، آپ کی دھڑکنوں کو شبد دینے کی کوشش کرتا ہے کہ بیتے ہوئے کل سے نفرت ہے، آتے ہوئے پل سے نفرت ہے، ان کو کبیر کے دوہوں سے غالب کی غزل سے نفرت ہے۔ وہ ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محبت نہ کرے، وہ ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محبت نہ کرے، میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے۔ میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے۔ ممتاز سے جو بھائی تک، اب سن کے بتانا بھوپال والوں کہ ممتاز سے جو بھائی تک چاہت ہی چاہت پاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ 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 گے۔ جس اور نظر دوڑاؤ گے، بھوپال کی سینکڑوں عمارتیں گواہ ہیں عمران کے ان مصروں کی، کہ جس اور نظر دوڑاؤ گے ہم کو ہی زندہ پاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ 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 گے۔ کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے۔ میں ایک ایک نام گناتا جاؤں گا ایک ایک مصرے میں، اور آپ کے دلوں میں ان کے لیے جو احترام ہے وہ تالیوں میں بدلتا جائے گا۔ میں پڑھتا ہوں صاحب کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے، شہنائی چھولی ہونٹوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے۔ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے، شہنائی چھولی ہونٹوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے۔ سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے۔ اب پھر سے پکارتا ہوں آپ کو کہ سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے۔ سرحد کی حفاظت کی خاطر عبدالحمید عثمان ہوئے، سرحد کی حفاظت کی خاطر عبدالحمید عثمان ہوئے۔ اب میرا غرور کا مصرع ہے یہ کہ جس کو جانا تھا چلے گئے، جن کو جانا تھا چلے گئے، اب ہم کو بھیج نہ پاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے۔
नाज़रीन, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत मुआविया, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुम से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिजरत की दो किस्में हैं। एक हिजरत बुराइयों को छोड़ना है, दूसरी हिजरत अल्लाह ताला और उनके रसूल की तरफ हिजरत करना है, यानी अपनी चीज़ों को छोड़कर अल्लाह ताला और उनके रसूल के रास्ता में हिजरत करना है। हिजरत इस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक तौबा कबूल होगी। तौबा इस वक्त तक कबूल होगी जब तक सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए। जब सूरज मगरिब से तुलू हो जाएगा तो इस वक्त दिल जिस हालत में ईमान या कुफ्र पर होंगे इसी पर मुहर लगा दी जाएगी और लोगों के पिछले अमल ही हमेशा के लिए कामयाब होने या नाकाम होने के लिए काफ़ी होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह, सबसे अफजल कौन सी हिजरत है? इरशाद फरमाया, तुम अपने रब की नापसंदीदा चीज़ों को छोड़ दो। और इरशाद फरमाया, हिजरत दो किस्म की है, शहर में रहने वाले की हिजरत, देहात में रहने वाले की हिजरत। देहात में रहने वाले की हिजरत यह है कि जब उसको अपनी जगह से बुलाया जाए तो आ जाए और जब उसे कोई हुक्म दे दिया जाए तो उसको माने। और शहरी की हिजरत भी यही है कि लेकिन शहरी की हिजरत आजमाइश के एतबार से बड़ी है और अज्र मिलने के एतबार से भी अफजल है। फ़ायदा, क्योंकि शहर में रहने वाला बावजूद कसरत मशागिल और कसरत सामान के सब कुछ छोड़कर अल्लाह ताला के रास्ते में हिजरत करता है, लिहाजा इसका अल्लाह ताला की राह में हिजरत करना बड़ी आजमाइश है, इसलिए ज़्यादा अज्र मिलने का ज़रिया है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू सईद जो अल्लाह ताला को रब मानने और इस्लाम को दीन बनाने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी हो तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु को ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, दोबारा इरशाद फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इरशाद फरमाया। फिर फरमाया, एक दूसरी चीज़ भी ये है जिसकी वजह से बंदा को जन्नत में 100 दर्जे बुलंद कर दिया जाता है। 2 दर्जों का दरमियानी फ़ासला आसमान और ज़मीन के दरमियानी फ़ासला के बराबर है। उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह, वो क्या चीज़ है? इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद है। अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद है। अल्लाह ताला का इरशाद है, कामिल ईमान वाले तो वही लोग हैं जो अल्लाह ताला और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, फिर उम्र भर कभी शक नहीं किया, यानी अल्लाह ताला और उनके रसूल की हर बात को तहे दिल से तस्लीम किया और उसमें कभी शक न किया और अपने मालों और अपनी जानों के साथ अल्लाह ताला के रास्ते में मुशक्क़तें बर्दाश्त की, यही लोग ईमान में सच्चे हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने घर छोड़े और अल्लाह ताला के रास्ते में अपने जानो माल से जिहाद किया, अल्लाह ताला के यहाँ उनके लिए बड़ा दर्जा है और यही वो लोग पूरे कामयाब हैं। उन्हें उनके रब खुशखबरी देते हैं अपनी रहमत और रज़ामंदी और जन्नत के ऐसे बागों की जिनमें उन्हें हमेशा की नेमतें मिलेंगी। इन जन्नतियों में ये लोग हमेशा हमेशा रहेंगे। बिलाशुबा अल्लाह ताला के पास बड़ा अज्र है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप मुसलमानों से कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई और बीवियाँ और तुम्हारी बराबरी और वह माल जो तुमने कमाए हैं, वह तिजारत जिसके बंद होने से तुम डरते हो, वह लोग, वह मकानात जिसमें रहना तुम पसंद करते हो, अगर ये सब चीज़ें तुमको अल्लाह ताला से और उनके रसूल से और अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा महबूब हैं तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह ताला सज़ा का हुक्म भेज दें, और अल्लाह ताला हुक्म ना मानने वालों की रहबरी नहीं फरमाते। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन की दावत के सिलसिला में मुझे इतना डराया गया कि किसी को इतना नहीं डराया गया, और अल्लाह ताला के रास्ते में मुझे इतना सताया गया कि किसी और को इतना नहीं सताया गया। मुझ पर 3 दिन और 30 रातें मुसलसल इस हाल में गुजरी है कि मेरे और बिलाल के लिए खाने की कोई चीज़ नहीं थी जिसको कोई जानदार रख सके। सिर्फ इतनी चीज़ होती जिसको बिलाल की बगल छुपा ले, यानी बहुत थोड़ी मिकदार में होती थी। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे तो सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।